चलो बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Many greetings to you, many greetings to you, happy birthday to you, happy birthday to you. चलो बेटा आप ही ना और भाई ये पीछे लेके चले जाओ, प्रोग्राम खत्म होते जाओ, पूरे बच्चों को काट लो। बड़े होना चाहिए, इंशाल्लाह रहेंगे ना भाई। हम छोटे नहीं हैं, हमारे पास बहुत बड़ी ताकतें हैं और बड़ी हिम्मतें भी आपके सामने ठहरे हुए हैं। ये हिम्मतों की, ये ताकतों की बदौलत इंशाल्लाह आप भी अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आपको असलम हुसैन साहब से मैं कुछ गुजारिश करता हूँ कि आपके दिल के ख्यालात का इजहार करें। वैद भाई आगे देखो, इससे देखते जाओ। आप लोग सामने आ जाओ, जो नहीं लिए सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। पूरे आगे पूरे देखो, हाथ उठाओ, हाथ आगे बढ़े तो मानो हेलो अपन भाई ज्यादा तो नहीं कहा तो जल्दी अपन भाई आगे बोले तो मालूम बैठा आ जा रहे देखो, दे दो। अब कितने लिए दो इधर थोड़ा बच्ची को हाथ में पकड़ो, ये ऐसा पकड़ो, ये अच्छा चला हम लोग ना बोलो पीछे भी हो चलिए हम लोग शुक्रिया शुक्रिया दोनों का। ऐसा ले लो, खाली एक फोटो शहबाज अकबर भाई, ब्लैंकेट
یہ دے دو. شکریہ آپ لوگوں کا. کافی دیر سے وٹامن ڈی لے رہے ہیں آپ لوگ. ابھی میں چاہوں گا کہ میڈم بھی کچھ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں, اور ٹیچرز کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ لوگ بھی کافی محنت کر رہے ہیں, ایسے محنت کیجیے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہ محنت کے ساتھ جو ہے آپ لوگ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, بچوں کے لیے, ہمارے لیے بھی انشاءاللہ تعالی. کا قسم فرما آپ کے ہمارے دل عزیز اسکول انتظامیہ کے معتمد عمومی جناب ہمایوں مرزا صاحب اور میرے دوست, میرے بڑے بھائی جناب سید اکبر حسین صاحب, چیئرمین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن, نبیل صاحب جو ہمارے ترقیاتی ڈائنامک شخصیت ہے, اور اصغر حسین صاحب, غوث بھائی, عظمت اللہ, اور تمام دیگر یہاں پر موجود اساتذہ صاحبان. آج خصوصیت سے ہم جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہے, کیونکہ میرے اور آپ کے اس ریاست کے وزیر اعلیٰ کلبہ اللہ چندر شیکھر راؤ صاحب کی آج 68ویں برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے ہم جمع ہوئے. اور آج کا مقصد نہ صرف ہم ان کی برتھ ڈے اس کو تصور کر رہے ہیں, بلکہ اس کو ایک اسٹیٹ فیسٹیول کے طور پر اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اسٹیٹ فیسٹیول کے طور پر. اور نہ صرف یہ ریاست تلنگانہ میں سیلیبریٹ ہو رہی, بلکہ ملک کے کونے کونے میں نہیں, بلکہ دنیا کے تقریباً 64 ممالک میں آج میرے اور آپ کے اس ریاست کے وزیر اعلیٰ کلبہ اللہ چندر شیکھر راؤ صاحب کی برتھ ڈے کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور آج خصوصیت سے میرے وزیر اعلیٰ کلبہ اللہ چندر شیکھر راؤ صاحب کے بھتیجے کا ایک ٹارگیٹ بھی ہے, گرین انڈیا چیلنج انڈیا کے نام سے 1 کروڑ پودے لگا رہے. 1 کروڑ پودے آج کے ایک ہی دن یہ قابل ستائش کارنامہ رہا, کیونکہ یہ ایسی شخصیتوں کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے لگایا جاتا جن کے کچھ خدمات ہو, جن کے کچھ کارنامے ہماری ریاست پر یا ہمارے شہر پر یا ہمارے علاقے پر ہو. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, کیونکہ میں پہلے تو دیر سے آیا, معافی چاہتا ہوں, اور آپ لوگ دھوپ میں بیٹھ کر پوری گرم ریت پر بیٹھ کر سن رہے ہیں, میں معافی کا طلبگار ہوں, کیونکہ میں چھاؤں میں ٹھہر کر آپ سے مخاطب ہوں. میں بولنے کو بہت زیادہ وقت لے سکتا ہوں, لیکن چند خصوصیات جو میرے اور آپ کے اس ریاست کے وزیر اعلیٰ کے ہیں, میں آپ کو ایک بات ذہن میں بٹھا دوں, آپ کو ڈرنے یا گھبرانے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اس علاقے کے ماحول کو بگڑنے سے بچانا ہے, اور یہ دھیان لینا ہے کہ ہماری ریاست ایک سیکولر, یہ ملک ایک سیکولر ملک ہے, اور یہ ریاست میں ہمیشہ آج تک جتنے بھی چیف منسٹر بنے ہیں وہ سیکولر چیف منسٹر بنے. تو میری آپ سے یہی خواہش ہے, آپ بھی دعا کریے کہ ہمارے تلنگانہ پر جو آج بہت بڑے ٹارگٹ لگا کر بیٹھے ہیں کچھ لوگ, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آج سیلیبریٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ریاست کا بچہ یہ جانے کہ KCR کون ہے اور تلنگانہ راشٹریہ سمیتی پارٹی کیا ہے. اسی لیے آج ہم بہت زیادہ اب تک 8 سالوں میں ان کا برتھ ڈے اتنا بڑے پیمانے پر سیلیبریٹ نہیں کرے. آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم کو اٹھنا ہے اور کچھ کر دکھانا ہے, کیونکہ آپ کو ریاست کے تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کا میں آپ کو شروع سے آخر تک کا تجربہ, جو میں 2001 سے پارٹی میں ہوں, چھوٹا سا مختصر سے طور پر آپ کو بتا دوں. KCR صاحب کوئی چیف منسٹر کی کرسی کے لیے کبھی نہیں لڑے, انہوں صرف یہی چاہتے کہ آپ کا اور علاقے کے جو حقوق کو ختم کیا جا رہا تھا اس کی جدوجہد کرے. انہوں تلنگانہ تحریک کے طور پر تلنگانہ راشٹریہ سمیتی قائم کرے.
कायम करके ये चाहते थे कि ये इलाके को पसमानदा कर दिया गया, इसके हुकूक को यानी आवाम तक दिलाने के लिए हमको जदोजहद करना है। तो वो एक नारा लेके उठे तेलंगाना के नाम से। तो अल्लाह ने दरगाह यूसुफ से उन्होंने ये तेलंगाना तहरीक का नारा लेकर उठे। आज अल्लाह ने उन्हें ना सिर्फ वो तहरीक में कामयाबी दी बल्कि उस रियासत का वज़ीर आला खुद उन्होंने बन चुके। तो अल्लाह का इतना फज़ल करम रहा, अल्लाह उनकी जो कोशिश थी उसको कबूल कर लिया। तो बताने का मकसद है ना सिर्फ कबूल करा बल्कि हम मेरे और आपके रियासत के वज़ीर आला ने, आप खुद जानते हैं पहले चंद गवर्नमेंट स्कूल होते थे जिसमें एक सफदरिया भी स्कूल है और रेसिडेंशियल स्कूल पूरे स्टेट में खाली 4 रेसिडेंशियल स्कूल थे, मुसलमान अक़लियत और माइनॉरिटीज़ के 4 थे। आज 206 है, आज 206 है। 70 सालों में 4 बने लेकिन अब 206। पहले रेसिडेंशियल स्कूल में क्या दिया जाता था, आज क्या दिया जा रहा, आपके साथी आप खुद कई टिमरीज में गए, आप खुद जानते हैं। वहाँ पर ड्रेस दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स के किट दिए जा रहे हैं, खाने के लिए डॉक्टर्स, हर चीज़ वहाँ पर सहूलतें मुहैया की गई। आप यकीन मानो 1 लाख से ज़्यादा रियासत के 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम तलबा वहाँ पर तालीम हासिल करते। ये बहुत बड़ा तालीमी सलाह है। मैं इसको सलाम करता हूँ और रियासत के वज़ीर आला का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे इमाम मौज़न का, मदरसों का, तमाम चीज़ों का ख्याल रखा। लेकिन मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोग ग्रुप में हैं। उससे एक सवाल भी हुआ था, मैं उस सवाल का भी जवाब देते हुए ख़त्म करूँ क्योंकि हुमायूं मिर्ज़ा साहब यहाँ पर हैं। आप भी कुछ औक़ाफ़ी जायदाद के मुतवल्लियों में शुमार किए जाते हैं। औक़ाफ़ी मसाइल जिस तरीके से हम बाज़ारों में या कोटलों की नुक्कड़ों पर खड़ कर कहते हैं कि ये मिल्लत का असासा है, ये मिल्लत का असासा मैं समझूंगा खाली ज़बानी खर्च है क्योंकि ये बातें सिर्फ ज़बान की हद तक ही मैं समझूंगा ये है, महदूद है क्योंकि इसमें कई रुकावटें हैं। एक बड़ा माफिया इस पर काम कर रहा है। इस माफिया को अगर हमको ख़त्म करना है तो इंतहा से ज़्यादा जब तक हुकूमती सतह पर हमको मजबूत नहीं किया जाता, वक्फ बोर्ड को जब जुडिशियल पावर नहीं दिया जाता, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक साफ तौर पर आपको बता दें और हुमायूं मिर्ज़ा साहब यहाँ पर हैं, आप बता दीजिए। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, अब ये स्कूल में से थोड़ा एक यतीमों के लिए एक रूम बना देंगे बोले तो साथ तैयार होते क्या, पूछ लीजिए। क्योंकि मुतवल्ली हजरात भी ये चाहते हैं कि हम कोई चीज़ को जगह देना नहीं चाहते। केसीआर साहब तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के लिए वक्फ जायदाद पूछना चाह रहे थे तो कोई पूरे तेलंगाना से कोई मुतवल्ली या कोई दरगाह का इंतजामिया ये नहीं चाहता था कि हम दे, आप देना है तो रेवेन्यू की जगह दो, ये जगह कहीं को पूछ रहे हो। तो गवर्नमेंट भी अगर कोई चीज़ करना चाह रही है तो कोई तैयार होने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए कई रुकावटें हैं। जब तक इसको जुडिशियल पावर नहीं दिया जाता, जब तक सख्ती से अगर अमल नहीं किया जाए, सख्ती से करना चाहिए, मोहब्बतों से काम होने वाला नहीं है। सख्ती से इस पर जब काम किया जाएगा तो तभी ये सब चीज़ें, हॉस्पिटल तैयार होंगे, आपके लिए वो तैयार होगा। और मैं कहूँगा कि मुतवल्ली हजरात का भी बहुत बड़ा उनके वालिदैन ने उनकी जायदाद अपनी औलाद को नहीं देते वक्फ किया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए क्योंकि वो लोग जो वक्फ करें, लेकिन वक्फ नामे में ऐसी चीज़ें भी मंशा वक्फ के तहत दर्ज है कि ये इसकी आमदनी सिर्फ और सिर्फ ये दरगाह के लिए, चिराग के लिए होना या दरगाह के मेंटेनेंस के लिए होना या मेरी औलाद के लिए होना, ये तमाम चीज़ें महदूद करके रख दिए गए, महदूद है। और इसमें हम तब्दीली लाएंगे तो शरीय एतबार से हमको इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। तो मैं समझूंगा और जो जायदादें भी है अल्लाह के फजल करम से है, वक्फ बोर्ड भी तकरीबन चीज़ों को उस पर गौर कर रहा है, जैसे कि मौत मट्टी को पैसे दे रहा है, यानी बेवा जो भी खुला ली हुई ख़वातीन है महीना 3,000-4,000 रुपये तकरीबन 1,000 से ज़्यादा लोगों को दे रहा है। ऐसे तमाम सर्विसेज भी वक्फ बोर्ड के हैं और मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे भी वक्फ बोर्ड कैंसर पेशेंट को 2-2 लाख रुपए भी कई जनों को दिए हैं। और रोज़ाना जो डेली पेशेंट्स बता कर आते हैं 10,000 से कम किसी को नहीं दिया जाता। ये तमाम चीज़ें वक्फ बोर्ड में सहूलत है और वक्फ बोर्ड को अगर सही तौर पर गवर्नमेंट साथ दी, अगर जुडिशियल पावर दी, तो मैं समझूंगा अल्लाह के फजल करम से वक्फ बोर्ड को किसी के भीख की ज़रूरत नहीं। वक्फ बोर्ड किसी का मोहताज नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। तमाम गुरबा मसाकिन से लेकर तमाम की तालीमी अगर बेड़ा उठाए, वक्फ बोर्ड को कहे तो वक्फ बोर्ड उठा सकता। वक्फ बोर्ड की उतनी जायदाद है, मगर उसके लिए हमको बाहर निकलना चाहिए, हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दे। जब तक जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को नहीं दिया जाता, जब तक माफिया के खिलाफ
सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, ये काम होने वाला नहीं है। तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के वजीर आला से मैं आपके जरिए इस बात की भी ख्वाहिश करता हूं कि आपका भी वादा है, यानी वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाए और सख्त कार्रवाई के लिए वक्फ बोर्ड को हिदायत जारी किया जाए कि सख्त एक्शन लिया जाए। मैं आप तमाम का बेहद ममनून मशकूर हूं जिन्होंने मुझे सुना और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। हमारे हुमायूं मिर्जा साहब ने, अमीन साहब के जरिए मैं आप तमाम का बेहद ममनून मशकूर हूँ। आपसे दुआ गो कि अल्लाह ताला आप तमाम की सेहत और उम्र में दराज़ी अता फरमाए। अल्लाह आप तमाम को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता फरमाए और खुसूसन हम सबको अल्लाह हिदायत दे और नेक तौफीक दे और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपसे इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि आज के खुसूसी मौके पर मेरी रियासत के वज़ीर आला और इस रियासत के अमन भाईचारे के लिए भी आप दुआ फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।